Hello, welcome to Math Vibes. Today in this video we are going to learn about Euclid geometry. This is chapter number 5 in class 9 and the name is Introduction to Euclid Geometry, and we will discuss everything in detail about what exactly is Euclid geometry, what was the need for geometry, exercise all the questions and examples also in detail. So this is a one shot video. Those who are new to our channel, don't forget to click on the subscribe button. Let's start. So Euclid is also known as the father of geometry. We will understand why. See, geometry is made with two terms, geo and metron. Geo means earth and metry means measurement. So geometry means measurement of earth. So what do you think? What should be the need of geometry at that time? क्यों जरूरत पड़ी होगी? When humans started started feeling the need to measure the land, then this need developed the system of geometry. Okay. जब उन्होंने फार्मिंग करनी स्टार्ट की, जब उन्होंने घर बनाने स्टार्ट किए, जब उन्होंने बाउंड्रीज बनानी स्टार्ट की, राइट, और दे स्टार्टेड बिल्डिंग डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स लाइक दैट, सो दे फेल्ट द नीड टू measure the land and that developed geometry. Now this need was different in different parts of the world. Let's see how. See, for example, in Egypt, okay, what happened is that river Nile, whenever there was a rain, then river Nile started flooding and it just washes away the boundary. They have to again draw the boundary again. जब जब बहुत ज़्यादा बारिश आती थी तो बाढ़ से वाली सिचुएशन होती थी, तो रिवर नाइल जो है वो ओवरफ्लो हो जाती थी और सारी बाउंड्रीज को वॉश आउट कर देती थी. So to draw the boundaries again, they need to measure that, okay, measure the land or something like that. So also when they were making the pyramids, then also they need some technique to find out the volume, okay, or constructing the canals or things like that where the land was to be measured. So they felt that there should be something related to those measuring of land and all जो help करे. Okay, so same way they were building truncated pyramids also. Truncated pyramids you will learn later on also in your class. When a pyramid को जैसे काट दो ऊपर से, so that is called truncated pyramid, right? So these type of shape also they were drawing, not drawing, we draw. They used to make it, right? So next, in India also geometry was widely used, okay, that you can see in the excavations of Harappa and Mohenjo-daro civilization, that Indus Valley civilization. If you see, then they have constructed roads which were parallel to each other. The cities were well developed, there were drainage system, the rooms were of different types, even the bricks were kiln fired. पक्की ईंटों से बने हुए घर थे वहां पे, और जो ईंटों की रेशो थी वो लेंथ इज टू ब्रेथ इज टू थिकनेस के अकॉर्डिंग देखें तो इट वाज 4:2:1. So that clearly shows that they were using the concepts of geometry, right? So worldwide geometry was being used, but it was in unsymmetric manner. किसी का किसी के साथ कोई connection नहीं था, because at that time you are aware कि mobile phones तो होते नहीं थे, computer नहीं होता था, internet नहीं होता था. So they didn't know how to exchange their knowledge, you can say, right? So Thales was also a Greek mathematician. The Greek people, they were very much interested in developing the reasoning behind why certain construction work. Okay, but those Babylonians or Egyptians, they also used geometry, but they used geometry for practical purposes. They didn't bother much to develop a systematic science कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ. But Greece में the main emphasis was the reasoning कि क्यों construction work कर रही है. Okay, and there Thales was the first Greek mathematician who gave the first known proof of geometry.
which was that the circle is bisected by its diameter. ये first proof था जो उसने दिया. Okay, and that activities was based on the theory of the Greek mathematician Thales, and he was famous for his method of measuring the heights of the pyramids using their shadow on the ground also. Okay, और जो first known proof उसने दिया वो इस theorem का था that circle is bisected by its diameter. Now later on, Pythagoras was the pupil of Thales, उसका student था, and he developed the theory of geometry to real extent. Pythagoras ने बहुत ज़्यादा development की इस field में, geometry के field में. Okay, as you all know by the name only that he developed Pythagoras theorem, जो कि most useful theorem है in math, science. You study physics also, वहाँ पे भी आपने use किया होगा. Everywhere Pythagoras theorem is used, right? So after that, now this process continued till 300 BCE, and then Euclid. Euclid was a teacher of mathematics at Alexandria in Egypt. He collected all the known work. अभी तक अभी तक जो ज्योमेट्री थी इट वाज नॉट सिमेट्रिक इन नॉट अ सिमेट्रिकल मैनर. कोई कहीं कुछ यूज कर रहा था, कोई कहीं कुछ यूज कर रहा था, बट इट वाज नॉट कंपाइल्ड, you can say. So he did this work, Euclid did this work, and he collected all the known work and arranged it in his famous treatise. उसने एक बुक की टाइप होता है treatise, उसने वो लिखा और उसका नाम रखा एलिमेंट्स. ओके, और वो उस एलिमेंट वाले ट्रीटीज को, बुक को, ठीक है, जिसका नाम था एलिमेंट्स, उसको 13 फर्दर चैप्टर्स में डिवाइड किया, and that was based on maths and geometry. So that is why Euclid is known as the father of geometry. उन्होंने जितने वर्ल्ड वाइड नोन प्रूफ्स थे, यू कैन से, ओके, ज्योमेट्री के रिलेटेड जो भी नोन वर्क था, जो किसी भी मैथमेटिशियन ने किसी भी वर्ल्ड के फील्ड में, वर्ल्ड में जगह में किया हो, उसको कलेक्ट किया. Okay, that is why he is also known as the father of geometry, right? So now Euclid gave some definitions which you have to learn. Okay, the definitions were: a point is that which has no part. Now when you will do Euclid's geometry, then you please remember ये वो geometry की definitions नहीं होंगी जो हम अब करते हैं. That was the early definition of geometry which are not necessarily very useful, और इसीलिए हम उसकी यूक्लिड की ज्योमेट्री आज यूज नहीं कर रहे, but that was the basis of that. Okay, so definitions might differ. तो आपने ये नहीं कहना, सोचना कि लाइन की तो वो डेफिनेशन होती है, इसकी तो ये होती है. ये यूक्लिड की डेफिनेशन है. वी आर लर्निंग यूक्लिड्स ज्योमेट्री. ओके, which says that a point is that which has no part. A line is breadthless length. Ends of a line are points. A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. A surface has length and breadth only. Edges of a surface are lines, and a plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. Now Euclid mainly worked upon surface, 2D shapes. Okay, so that is why he has given these type of definition. Point वो है जिसका कोई part नहीं होता. लाइन एक ऐसी लेंथ है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं है. आई नो यू माइट थिंक कि ये क्या है, यूजलेस सा, बट ये ऐसा ही है और आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा. ओके, एंड थर्ड इज एंड्स ऑफ अ लाइन और पॉइंट. वी नो कि लाइन के एंड पॉइंट ही होते हैं, बट हम ये अब बोल रहे हैं ना कि वी नो कि ऐसे ही तो होता है और क्या होता है. ये उस टाइम नहीं था. एट दैट टाइम ज्योमेट्री वाज बीइंग डेवलप्ड. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड. तो ये चीजें भी डिफाइन, आपको अभी जैसे लगता है कि एबीसी क्या है, इट्स लाइक ABCD, तो सबको पता है, बट नो, कभी एबीसी भी तो डेवलप हुई होगी ना. सो सेम वे ज्योमेट्री वॉज ऑल्सो डिवेलप्ड एट सम टाइम. तो ये तब की डेफिनेशन है जब ज्योमेट्री बन रही थी, यू कैन से. Okay, so next fourth is a straight line is a line which lies evenly with the points on itself. एक straight line एक ऐसी line है जिसमें सारे points evenly होते हैं, मतलब सेम सेम उस पे होते हैं, right? Next is a surface as length and breadth only. अब अगर मैं आपसे पूछूं plane shape क्या है, तो आप बोलोगे plane shape is a 2D shape, right, which has length and breadth. तो उस टाइम उसने इसका नाम 2D shape नहीं दिया, उसने बोला surface. तो उसके अकॉर्डिंग surface वो है जो लेंथ और ब्रेथ होती है, right? Next, edges of a surface are lines.
ठीक है, जो सरफेस की एज है, अगर आप एक 2D शेप देखो, राइट, अगर आप अभी ये लैपटॉप या मोबाइल जिस पे भी देख रहे हो वीडियो, उस पे अगर आप उसके एज देखो तो वो लाइन ही होती है, राइट। नेक्स्ट, a plane surface is a surface which lies evenly with the straight line or on itself. प्लेन सरफेस एक ऐसी की सरफेस है जो स्ट्रेट लाइंस के बीच में होती है, राइट। तो ये उसकी डेफिनेशंस थी जो यूक्लिड ने उस टाइम पे डेफिनेशन दी, राइट। नाउ इन दिस डेफिनेशन, ये क्यों इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई डेफिनेशंस, क्योंकि इसमें कुछ अनडिफाइंड टर्म थी। जैसे उसने ये तो बोला कि पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, बट पॉइंट क्या है, व्हाट इज लाइन, व्हाट इज अ प्लेन, उसने ये तो डिफाइन ही नहीं किया कि वो पॉइंट किस चीज को कह रहा है, वो लाइन किस चीज को कह रहा है, राइट। सो दीज टर्म्स वर लेफ्ट अनडिफाइंड, ऑलराइट। सो So definitions की ये problem आ रही थी that the definitions of a point, a line and a plane, they are not accepted by mathematicians. Therefore, these terms are taken as undefined. For example, point ये है, उसकी कोई dimension नहीं है. Line की एक dimension है, plane की 2 dimension है, बस, right? So next, Euclid assumed certain properties which were not to be proved. तो उसने कुछ properties को assume किया था जिनको प्रूव नहीं करने की जरूरत है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब कैसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जैसे द सन सेट्स इन वेस्ट, ठीक है, सन राइजेस इन ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, रात होती है दिन होता है, ठीक है, सूरज निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट, जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो दीज देयर वर सम assumptions जो उसने एक्सेप्ट की कि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एंड ही डिवाइडेड दीज properties or assumptions into two parts. One was axioms, other was postulates. अब axiom क्या होता है, he used the term postulate for the assumptions that were specific to geometry. अब postulate होता है जो उसने assumptions geometry के related लगाई, जो उसने assumptions geometry के related लगाई, उसको उसने बोला postulate, ठीक है। और जो कॉमन नोशंस थी विच वर नॉट रिलेटेड टू ज्योमेट्री, विच वर नॉट लिंक्ड टू ज्योमेट्री, वो उसने बोला कि ये एक्सियम है, ओके। अब उसने कुछ एजम्पशन की थी, उसने उस एजम्पशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन वाज एक्सियम्स, वन वाज पोस्टुलेट, राइट। जो ज्योमेट्री से रिलेटेड थी उसको उसने बोला पोस्टुलेट, जो नहीं थी रिलेटेड ज्योमेट्री से उसने उसको बोला एक्सियम, राइट। So Euclid axioms were basic facts which were obvious. These were the universal truth. They are not to be proved. Okay, universal truth थी. और theorems were the statements which are proved. Prove किया उसने कैसे? With the help of definitions, with the help of axioms, with the help of previously proved statements, or by deducting reasoning. Okay, and or by some axioms that are related to geometry. So those were called Euclid's theorems. Now what are Euclid's axioms? Now remember these Euclid axioms and Euclid's postulates. They are very important. They can come number wise. तो आपको इसको number wise ही याद करना है. Okay, especially the postulates. Axioms को भी करना चाहिए, बट अगर नहीं हो रहा तो एटलीस्ट इनकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए. पोस्टुलेट्स को यू हैव टू लर्न देम इन द सीरियल ऑर्डर ओनली. नाउ यूक्लिड एक्सियम बोलता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर. वो चीजें जो सेम चीज के इक्वल हो वो एक दूसरे के भी इक्वल होती है. जैसे इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो बी बी कॉमन है ना, तो वो कट जाएगा और ए सी के भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल. मतलब अगर ए ऑलरेडी बी के इक्वल मुझे दिया हुआ है, ए ऑलरेडी बी के इक्वल मुझे दिया हुआ है, तो अगर मैं दोनों तरफ सी सी ऐड कर दूं तो ए प्लस सी बी प्लस सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. मतलब सी और सी तो एक दूसरे के इक्वल है ही है. सो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल. Same way, if equals are subtracted from equals, then remainders are equal. Right? That means if A is equal to B, then we can say that A minus C will be equal to B minus C.
ओके, इफ ये सबसे ज्यादा यूज होना है. If equals are added to equals, wholes are equal. If equals are subtracted from equals, then remainders are equal. सबसे ज्यादा यूज होगा ये, ध्यान से करना. Next, things which coincide with each other are equal to one another. In one of the question we will use this also, that things which coincide with each other are equal to one another. Next, whole is greater than the part. जो चीज complete है वो हमेशा किसी part से बड़ी ही होगी, right? Next, ये भी बहुत यूज होगा, things which are double or half of the same thing are equal. अब डबल वाला देख लेते हैं पहले. things which are double or half, like if a is equal to b, तो अगर मैं इसको डबल कर दूं तो it is 2a is equal to 2b. और नेक्स्ट स्टेप में मैंने दोबारा इसको लिखा हुआ है कि अगर हाफ वाले को लेना हो तो कैसे बनेगा कि इफ a is equal to b then a by 2 is equal to b by 2. These are Euclid axioms which you have to learn. रट्टाफाई whatever you want to do. समझो, एक बारी समझ लो, then just learn it. ओके, क्योंकि ये ऐसे ही डेफिनेशन की तरह ही याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप नंबर वाइज याद करोगे, बिकॉज इन द पेपर इट कैन कम लाइक दिस ओनली, दैट डिफाइन यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, डिफाइन यूक्लिड्स फोर्थ पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट, ये आ सकते हैं क्वेश्चन इस तरीके से भी. सो यू हैव टू लर्न इट लाइक दैट. So first postulate says that a straight line may be drawn from any one point to another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है. एक लाइन से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है. नेक्स्ट, अ टर्मिनेटेड लाइन में बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. टर्मिनेटेड लाइन, अब उसने ये डिफाइन नहीं किया ना, दिस इज अनडिफाइंड टर्म, कि टर्मिनेटेड लाइन से उसका क्या मतलब है. बट वो कहता है कि अगर एक टर्मिनेटेड लाइन हो तो उसको दोनों तरफ से हम, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, ओके, इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं. थर्ड ही सेज, थर्ड पोस्टुलेट इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. सर्कल ड्रॉ हो सकता है, जो सा मर्जी सेंटर ले लो, जो सी मर्जी रेडियस ले लो, ठीक है. नेक्स्ट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. नेक्स्ट, फिफ्थ पोस्टुलेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत बारी आता है, ठीक है. It says if a straight line falling on two straight lines, एक straight line, okay, straight line अगर दो ऑलरेडी जो straight line है उन पे fall करे और interior angles बनाए on the same side of it, taken together less than 2 right angles, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles. ओके, जैसे हम वो ट्रांसवर्सल लेते हैं और को इंटीरियर एंगल बनाते हैं, है ना, उस टाइप के हैं ये. लाइक इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड द फिफ्थ पोस्टुलेट देन आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट. ये बोल एक्चुअली ऐसे रहा है कि अगर ट्रू स्ट्रेट लाइंस हैं, ओके, दो स्ट्रेट लाइन है, उनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है लाइक दिस, तो ये जो दो इंटीरियर एंगल बनाएगी, ठीक है, सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, ये जो दो इंटीरियर एंगल बनाएगी, इन दोनों के इंटीरियर एंगल का जो सम होगा इट विल बी लेस देन 180 इन सच अ वे. लेस देन 180 है, अगर लेस देन 180 है दैट मीन्स अगर मैं इनको ऐसे प्रोड्यूस करूं तो आगे जाके ये किसी पॉइंट पे मिल जाएंगी. इनडेफिनेटली अगर मैं इनको प्रोड्यूस करूं तो ये आगे जाके किसी पॉइंट पे मिल जाएंगी. So this is what the fifth postulate says. Okay, so fifth postulate थोड़ा सा difficult है, but अगर समझ लोगे तो easy बन जाएगा और important ये बहुत है. Alright, so moving on. Coming up now is exercise 5.1. ये थी डिटेल, पीछे हमने किया डिटेल, हिस्ट्री, ज्योमेट्री क्या थी, फिर यूक्लिड ज्योमेट्री कैसे बनी, उससे पहले किस किसने बनाया, और नीड क्या थी ज्योमेट्री की, ओके. और अब बेस्ड ऑन सम क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, एंड यू ऑल्सो हैव टू गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, एंड रिमेंबर द रीजन शुड बी लाइक एन एक्सियम और सम और पोस्टुलेट, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज only one line can pass through a single point. क्या सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है?
इट इज फॉल्स. सी अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो if I take any one point O, then I can pass indefinite lines from here. I can draw as many lines as I want. So the given statement is false. Next, second was there are an infinite number of lines which pass through two distinct points. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती हैं. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर आप P और Q दो पॉइंट्स लो, P और Q, ठीक है, तो P और Q से तो एक ही स्ट्रेट लाइन पास करेगी, एक ही लाइन होगी जो P से भी पास करे, Q से भी पास करे, राइट. बट P अकेला अगर मैं पॉइंट लूं तो वहां से, हाँ यस दैट इज पॉसिबल कि इनडेफिनेट लाइंस इन कैन पास, Q से भी इनफाइनाइट लाइंस कैन पास. पर P और Q टेकन टुगेदर अगर भी हम लें दोनों इकट्ठे, तो सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, राइट. देयर कैन बी ओनली वन लाइन. ओके. थर्ड, a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. Not a terminated line, ये तो हमें postulate 2 में ही बोला था उसने. It is true. ओके, बट यहाँ पे अगेन आपको लिखना पड़ेगा that by postulate 2, Euclid postulate 2 which says that a terminated line can be produced indefinitely, this is true. Next, if two circles are equal, their radii are equal. अगर दो सर्कल इक्वल होंगे तो उनके रेडियाई भी इक्वल होगी, ये भी ट्रू है. अगर आप उसको सुपर इम्पोज करो, ठीक है, सर्कल को सुपर इम्पोज क्या होता है, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रखो, सेम टाइप के सर्कल हो, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रखो, क्योंकि उसने तो सेम टाइप ही बोला है ना कि अगर दो सर्कल इक्वल हो तो एक के ऊपर दूसरा रखोगे तो उसके रेडियस भी तो मैच करेगी. सो यस द आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट, इन फिगर, इफ, अब ये फिगर गिवन है, अब उसने बोला है कि अगर इस फिगर में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इस फिगर में अगर हम ए बी, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये जो है लाइन, जस्ट वेट, I'll mark it so that you can understand better. If AB is equal to PQ, right, and PQ is equal to XY, AB PQ के इक्वल है और PQ XY के इक्वल है, तो प्रूव करो कि जो AB है वो XY के भी इक्वल होगा. Yes, हमने यूक्लिड एक्सिम किया है that things which are equal to the same thing are equal to one another. सबसे पहले यही तो किया था. A is equal to B, B is equal to C, तो मतलब A is equal to C. तो सेम, अगर ये लाइन, अगर ये फर्स्ट वाली लाइन इसके इक्वल है, फर्स्ट वाली लाइन सेकंड के इक्वल है, सेकंड वाली लाइन थर्ड के इक्वल है, तो टू सेकंड तो कॉमन आ गया ना, तो उसको स्किप कर दो, तो फर्स्ट वाला थर्ड के इक्वल हो गया, राइट. फर्स्ट वाला थर्ड के इक्वल हो गया, करेक्ट. सो द आंसर इज ट्रू. नाउ let us take second question. Second question says that give a definition for each of the following terms. इन सबकी हमें definition बतानी है. और are there any other terms that need to be defined first? इनके definition बताने से पहले कोई ऐसी terms हैं जो हमें पहले define करनी पड़े? अगर हैं तो क्या है? ओके, और अगर हैं तो उनको आप कैसे define करोगे, वो आपको बताना है. सो क्वेश्चन का कोई भी पार्ट आ जाए, उनमें अनडिफाइंड टर्म्स जो भी यूज हो रही हैं मैंने कंबाइन लिखी हैं, सो यू कैन पिक दैट अप एंड यू कैन राइट. सो यस, वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द टर्म्स point, line, ray, angle, plane, circle and quadrilateral etc. before defining the required terms. Now note, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है तो ऑब्वियसली आपको 5 के 5 तो नहीं आएंगे ना इकट्ठे. यहाँ पे 5 पूछी थी तो इसलिए ऐसे आया था, वहां पे आपको एक ही पूछी होगी. तो आपको जिस चीज में, जिस पॉइंट में जो अनडिफाइंड लग रहा है आप सिर्फ वो लिखोगे, ऐसे नहीं सारा लिख देना है, पॉइंट, लाइन, रे सब लिख दो. नो नो, नॉट लाइक दैट. जो जिसमें यूज हो रहा है वो लिखोगे. यहाँ सब इकट्ठे हैं इसलिए इकट्ठा लिखा है, राइट. सो नेक्स्ट उसने पूछा है कि उसको फिर डिफाइन कैसे करोगे. लेट्स डिफाइन. फर्स्ट वाला है पैरेलल लाइंस. Two lines L and M in a plane are said to be parallel if they have no common point and we write them as L is parallel to M. कोई common point ना हो, okay, and the distance between them is remain fixed. Now perpendicular. Next is perpendicular lines. Two lines P and Q lying in the same plane are said to be perpendicular if they form a right angle and we write them as P parallel to Q. Now for example, अगर आपको यही आता है और इसमें undefined terms पूछे हैं तो इस first part में undefined term होगी plane,
राइट, और पॉइंट। ओके, अगर आपको सेकेंड पार्ट पूछा परपेंडिकुलर लाइंस, अगेन इसमें भी क्या होगा, प्लेन एंड राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट, third is line segment. A line segment is a part of a line and having a definite length. It has two endpoints and in the figure a line segment is shown having two endpoints A and B. तो इसमें आपकी undefined terms क्या होंगी, line and length, okay, and endpoints, right? Next, radius of a circle. The distance from the center to a point on the circle is called the radius of the circle. In the given figure, P is the center and Q is a point on the circle, then PQ is the radius. अब ये जो definitions हैं वो basically almost वही हैं जो हम करते ही हैं, तो इसीलिए I'm just doing it faster. Okay, तो इसमें आपकी undefined terms क्या होंगी, again क्या होंगी, center. Okay, so next, square. A square is a quadrilateral in which all the four angles are right angles and all the four sides are equal. That is called a square. इसमें undefined term क्या है, quadrilateral, angles, right angles. Okay, these are undefined terms. So this was question number 2. Moving on, question number 3 is given consider two postulates given below. ये दो postulates किए थे. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C, which is in between A and B. There exist at least 3 points that are not on the same line. First postulate में बोला है कि अगर आपको कोई दो distinct point दिए हों, okay, तो third ऐसे का point लाई करेगा जो A और B के बीच में है. Alright, जो A और B के बीच में है, कोई point होगा ऐसा. Next, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, कोई ऐसे 3 पॉइंट हो सकते हैं जो जरूरी ये नहीं है कि वो लाइन में हो. नाउ क्वेश्चन इज, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? इनमें कोई अनडिफाइंड टर्म है? आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं? एंड डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट? क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, मतलब ये उनसे बने हैं? एक्सप्लेन. Now yes, they contain undefined terms. कैसे? फर्स्ट वाली में क्या है, पॉइंट. हमें नहीं पता पॉइंट क्या है, उसने डिफाइन ही नहीं किया. इवन डिस्टिंक्ट से उसका क्या मतलब है, ये भी उसने डिफाइन नहीं किया. नेक्स्ट वाली में लाइन, व्हाट इज अ लाइन, ही हैज नॉट डिफाइंड दैट, राइट? सो दीज आर अनडिफाइंड टर्म्स. नेक्स्ट नेक्स्ट उसने बोला था, आर दे कंसिस्टेंट? तो कंसिस्टेंट हैं, यस. ये दोनों डिफरेंट सिचुएशन को डील कर रही हैं, डिफरेंट सिचुएशन को डील कर रही हैं, तो यस दे आर कंसिस्टेंट. ओके, अब इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करती हैं? No, they don't follow Euclid postulates. They follow Euclid's axiom that given two distinct points, there is a unique line that passes through them. अब कंफ्यूज नहीं होना, यूक्लिड पोस्टुलेट डिफरेंट है, यूक्लिड एक्सियम्स डिफरेंट है. ये पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रही, ये एक्सियम को फॉलो कर रही है. ओके, सो दीज वर क्वेश्चन 1, 2 and 3. नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड, बोल लो जो भी बोल लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया वीडियो का, क्योंकि क्वेश्चन 4, 5, 6 ऊपर डुपर इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ let's study question number 4. Now question number 4 is, if a point C lies between two points A and B, अगर कोई ऐसा पॉइंट C है जो A और B के बीच में लाई कर रहा है, in such a way, इस तरीके से लाई कर रहा है कि ये जो पार्ट है AC वो BC के इक्वल है. ठीक है, ये जो पार्ट है AC वो BC के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि जो AC है दैट इज हाफ ऑफ AB. ठीक है, इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन, अगर कोई पॉइंट C A और B के बीच में लाई कर रहा है इस तरीके से कि AC BC के इक्वल है, तो प्रूव करो कि जो AC है दैट इज हाफ ऑफ AB. AC AB का हाफ है, और फिगर भी बनानी है. ठीक है, फिगर भी बनानी है और इसको प्रूव भी करना है, तो दैट मीन्स इसमें फिगर बनाने के भी मार्क्स होंगे. ठीक है,
फिगर बनाने के भी होंगे, एक्सियम की रीजनिंग लिखने का, एक्सियम को डिफाइन करने के भी मार्क्स होंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के भी मार्क्स होंगे, राइट। सो सपोज इफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, तो 1 मार्क होगा फिगर ड्रॉ करने का और कुछ हाफ या 1 मार्क होगा एक्सियम लिखने का, रीजनिंग लिखने का, राइट। सो सोल्यूशन क्या है, AC इज इक्वल टू BC हमें गिवन है, ठीक है। मुझे प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब देखो हाफ ऑफ AB कहाँ से सोचें कि क्या करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा है AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू 2AC, 2AC, राइट। अब दैट मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ AC प्लस AC। मतलब अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं AC को दोनों साइड ऐड कर दूं तो शायद मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, एटलीस्ट क्वेश्चन का एक पार्ट तो सॉल्व हो ही सकता है, ठीक है। तो ये सोचने का तरीका है कि कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, ओके। सो अगर आपने हाफ करना है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, आपने एक्चुअली में 2 बारी AC लेके आना है और यहाँ पे आपका AC 1 टाइम आ रहा है, राइट। तो आप क्या करो, हम एक साइड में तो ऐड नहीं कर सकते, हमें दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो हम लिखेंगे इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन द होल्स आर इक्वल एंड वी विल ऐड AC on both the sides. Okay, so you can write over here that add AC on both the sides. By adding AC on both the sides, what you will get, AC plus AC is equal to BC plus AC. Reason क्या है, if equals are added to equals and the wholes are equals. अब ये बन गया, ये क्या बन गया 2AC और BC ये वाला प्लस AC ये वाला क्या बना, फुल लेंथ AB। ये फुल लेंथ AB बन गया, यही तो चाहिए था। अब हमें AC को वहां पे अकेले दिखाना है तो 2 इस साइड में आ जाएगा, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। दैट वाज टू बी प्रूव्ड। बस। अब आपको ये हो सकता है कि आपको सीधा सीधा नहीं पता लग रहा, अभी तक हम क्या करते थे, फॉर्मूला लगा लिया, ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन आया तो कुछ प्रॉपर्टी यूज कर ली, कुछ ऐसे कर लिया। यू थिंक दीज क्वेश्चन ऑल्सो एज सम प्रॉपर्टीज ओनली। अब हमें बस थोड़ा जैसे रिडल्स खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं ना, थोड़ा उल्टा सोचना पड़ता है कि कहाँ से सोचना शुरू करें कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे भी अगर क्वेश्चंस में थोड़ी सी 3 ही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, 5, 6, बाकी तो टर्म्स हैं, पोस्टुलेट हैं, डिफाइन करना है, नहीं डिफाइन करना, और तीनों एक ही टाइप के हैं। तो अगर एक समझ आ गया तो सब आ जाएंगे, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AP, ठीक है। क्वेश्चन 4 में पॉइंट C AB का मिड पॉइंट है। प्रूव करो कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। प्रूव करो कि हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, राइट। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है कि पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट, ओके। उस पॉइंट को हम मिड पॉइंट कहेंगे क्योंकि वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था। तो इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि ये प्रूव करो कि वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ही है, दो नहीं है, एक ही है मिड पॉइंट। तो हम अभी देखो, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि इसमें उल्टा सोचना शुरू करो, लाइक अ रिडल, की क्या करूं मैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब इसमें उसने बोला है कि एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक और सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन। तो हम सपोज कर लेते हैं कि नहीं भाई, एक नहीं होता, दो हो सकता है, ठीक है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि एक नहीं होता, दो हो सकते हैं। C नहीं है अकेला, C के साथ कोई D पॉइंट भी है, वो भी इसका मिड पॉइंट है, ये हमने सपोज किया, राइट। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो C अगर मिड पॉइंट था तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, AC इज इक्वल टू BC, यही किया था। अगर C मिड पॉइंट है तो दैट मीन्स आई हैव टू राइट, और आई कैन राइट कि AC इज इक्वल टू BC, ठीक है, कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल। अब मैं ये कह रही हूं कि नहीं भाई, सिर्फ C नहीं है, D भी हो सकता है। तो अगर D मिड पॉइंट है, पहले ये समझते हैं, अभी मैं रिटर्न पार्ट पे नहीं जा रही, पहले समझ लो कि करना क्या है। अब अगर D भी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट तो एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। मिड पॉइंट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जो AD है वो DB के इक्वल होना चाहिए,
क्योंकि मिड पॉइंट की तो यही डेफिनेशन होती है कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे AC इज इक्वल टू BC ना लिखूं, मैं हाफ वाले पार्ट से लिखूं, तो आई कैन राइट कि AC अगर BC के इक्वल है तो AC पूरे AB का हाफ है, हाफ पार्ट ही है ना, AC AB का हाफ पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि AC इज इक्वल टू हाफ AB। ओके, अब मैंने ऊपर बोला हुआ है कि D भी मिड पॉइंट है, अगर D भी मिड पॉइंट है तो फिर AD में भी ऐसे होना चाहिए कि AD भी AB के हाफ के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, AC इज इक्वल टू हाफ AB तो AD भी हाफ AB होना चाहिए, राइट। अब सी 1 और 2 मेरे पास आ गया, हाफ ए बी कॉमन है, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक साइड में तो आंसर बन गया 0, राइट। कर दो सब्ट्रैक्ट, AD माइनस AC, AD मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो दिख रहा है ना थोड़ा बड़ा है, वैसे कुछ कोई भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, सो माइनस करो तो आएगा AD माइनस AC इज इक्वल टू हाफ AB माइनस हाफ AB, AD माइनस AC इज इक्वल टू 0। अब देखो AD माइनस AC इज इक्वल टू 0, ठीक है, AD माइनस AC इज इक्वल टू 0, जरा करके देखे क्या बना, AD ये पूरा, ओके, माइनस AC ये वाला पूरा, तो कौन सा पार्ट बच गया, ये रेड वाला पार्ट CD। ठीक है, अगर मैं पूरे AD में से येलो वाले पार्ट में से छोटे येलो वाला पार्ट माइनस कर दूं तो ये रेड वाला पार्ट बच जाएगा ना, AD माइनस AC। ज्यादा हो गया है, मैं रब कर देती हूँ थोड़ा सा, आपको क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी। ओके, सो AD माइनस AC, वन मोर टाइम वी विल डू, सी ये है AD पूरा, ओके, और ये है AC इतना सा, ग्रीन लाइन में से रेड लाइन माइनस करोगे तो कौन सी लाइन बचेगी, ये ब्लू लाइन, ब्लू पार्ट बच जाएगा ना जो है CD। तो इसका मतलब अगर AD माइनस AC लिखना है तो उसको भी लिख सकती हूँ कि CD 0 के इक्वल है, पर ये गैप 0 के इक्वल कहाँ है, ये 0 के इक्वल तो नहीं है, ये कुछ तो होगा ना, यहाँ पे शो हो रहा है तो कुछ तो होगा इसके मेजरमेंट, पर ये तो कह रहा है कि नहीं कोई मेजरमेंट नहीं है इसमें, 0 ही आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो वो तो सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि C और D पॉइंट कोइंसाइड करें, मतलब कि वो दो डिफरेंट पॉइंट ना हो, वो एक ही पॉइंट हो, C और D कोइंसाइड करें, वो दो डिफरेंट पॉइंट नहीं हो, वो सिर्फ एक ही पॉइंट हो, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि CD 0 बन जाए। और अगर ऐसा है देन दैट मीन्स हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक मिड पॉइंट हो सकता है, तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमने तो दो लेके देखे थे, पर वो तो CD 0 आ गया, उसमें तो ये आ गया कि वो कोइंसाइड करने चाहिए, कोइंसाइड का मतलब है कि दो डिफरेंट पॉइंट नहीं हो सकते, एक ही पॉइंट हो सकता है, राइट। सो दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बट हो जाएगा, इट्स इजी। मूविंग ऑन, सिक्स्थ क्वेश्चन। So question 6 says that in figure if AC is equal to BD, again ध्यान से देखना, ओके, if AC ये वाला पार्ट AC BD के इक्वल है, AC BD के इक्वल है, तो प्रूफ करो कि AB CD के इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो AB है वो CD के इक्वल है। अब देखो AB को CD के इक्वल करने के लिए हमें पहले गिवन से स्टार्ट करना होगा। लेट अस सी, इट इज नॉट लेट अस, इट इज गिवन ओनली दैट AC इज इक्वल टू BD। अब देखो जो AC है, AC BD के इक्वल गिवन है, तो ये जो नीचे वाला ग्रीन पार्ट है AC, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ AB प्लस BC, लिख सकते हैं AC को AB प्लस BC लिख दो। BD ऊपर वाले ग्रीन पार्ट को BD, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ BC प्लस CD, लिख दिया। ओके, AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD, कहां से आया, AC को मैं लिख सकती हूँ AB प्लस BC, BD को मैं लिख सकती हूँ BC प्लस CD। ओके, और अब मेरे पास मुझे चाहिए था AB और CD, यहाँ पे AB है, राइट, यहाँ पे मेरे पास AB है,
यहाँ पे मेरे पास सी डी है, मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, बी सी। मुझे बी सी को हटाना है, फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मेरे पास एक एक्सियम होता है ना, व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स एंड द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो कर दो, बीसी है ना एक्स्ट्रा हमारे पास, इसमें से लिखो सब्ट्रैक्टिंग बीसी फ्रॉम बोथ द साइड्स, सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बीसी बीसी कैंसिल, यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी बीसी और बीसी इधर कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, मूविंग ऑन, नाउ द एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट, इट इज why is axiom 5 in the list of Euclid axiom? axiom 5 यूक्लिड के axiom में है क्यों? considered a universal truth. okay, ये क्यों है? और and yes, carefully you have to see that here they are not talking about Euclid's fifth postulate, they are talking about Euclid's fifth axiom, जो कहता है कि whole is greater than the part. उसको वो कह रहा है कि क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ लिया हुआ है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब अगर आप वैसे ही सपोज करो इन डेली लाइफ सिचुएशन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू थ्रू आउट, लाइक एनीवेयर इन एनी सिचुएशन यू कंसिडर, जो एक कंप्लीट चीज होती है वो एक पार्ट से हमेशा बड़ी होती है। एक पूरा पिज्जा की स्लाइस से बड़ा है, राइट? पूरा पिज्जा की स्लाइस से बड़ा है। एक पूरा केक पेस्ट्री से तो बड़ा होता है ना। तो ये तो हर चीज पे अप्लाई हो रहा है कि कंप्लीट चीज, पूरी वाली जो चीज है, कंप्लीट जो चीज है वो पार्ट से तो बड़ी होगी। तो जो चीज यूनिवर्सल ट्रुथ है, ओके, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ऑब्वियसली उसे विदाउट प्रूफ वी कैन एक्सेप्ट। ओके, इसलिए यूक्लिड के एक्सियम में वो एक्सियम सही है, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रुथ है बट वो सब जगह पे अप्लाई हो रहा है, राइट? सो दैट इज एक्सियम 5. Now that's all about the exercise. Now we are moving on to examples. This chapter has 2 examples. Example number 1 we are going to discuss quickly. So it says that if A, B, C are 3 points on a line, अगर A, B, C line पे 3 points हैं और B A और C के बीच में लाई करता है, तो प्रूव करो कि AB plus BC AC बनाता है। ओके, जो हमने अभी क्वेश्चंस में यूज किया। प्रूव ये करना है कि ए बी को ले लो और बी सी को ले लो तो कंप्लीट ए सी बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, कंप्लीट ए सी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, हमने ज्यूम किया कि देयर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। वो स्ट्रेट लाइन है जो 2 गिवन पॉइंट से पास कर रही है। ओके, एक स्ट्रेट लाइन 2 गिवन पॉइंट से पास कर रही है और उनके बीच में एक बी है। इसका मतलब जो ए सी है इट कोइंसाइड्स विद ए बी और बी सी, मतलब उन दोनों को मिला के ही बना है। ओके, उन दोनों को मिला के बना है। अगर स्ट्रेट लाइन बीच में से 2 गिवन पॉइंट में से पास कर रही है, ओके, तो कंप्लीट ए सी कैसे बन रहा है, ए बी और बी सी को ऐड करके। और यूक्लिड का 4th एक्सियम क्या कहता है कि थिंग्स विच कोइंसाइड्स विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे को मिला के बनी है, कोइंसाइड मतलब मिला के बनी है, ठीक है, तो वो कंप्लीट के इक्वली हुई। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। दैट्स इट, जस्ट अ गेम ऑफ वर्ड्स, है ना? ऐसे गेम की तरह बस यू हैव टू प्ले विद योर वर्ड्स टू गिव द आंसर। Yes, second question. Many of you might find this question very difficult. Listen carefully. है easy है, बस सुन लेना. Now this is the last question, last example of this chapter. After this chapter is completely over. Okay. Question is कि prove करो that an equilateral triangle can be constructed on any given line segment. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक लाइन सेगमेंट दी हुई है ए बी, जैसे यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दी है ए बी। ओके, आपको ये प्रूव करना है कि इस लाइन सेगमेंट से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। इस लाइन सेगमेंट से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। अब आपको यहाँ पे करनी है कुछ कंस्ट्रक्शन। ओके, आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू कैन शो इट रफली। ओके, सी क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दैट लाइन सेगमेंट ए बी, जस्ट ड्रॉ इट रफली। ओके, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन।
पहले ए एज अ सेंटर लो, ठीक है, ये पॉइंट एज अ सेंटर लो, ए बी रेडियस लो। ओके, अब ये आपको कंस्ट्रक्शन करनी नहीं है, डोंट जस्ट स्टार्ट ड्रॉइंग इट विद अ कंपास एंड अ पेंसिल, करनी नहीं है ये आपको, आपको सिर्फ वी विल राइट इट, पहले समझ लो कि करना क्या है, कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपने ए को सेंटर लिया, ए बी को रेडियस लिया, एक सर्कल ड्रॉ किया रफली, ओके। फिर आपने बी को सेंटर लिया, बी ए रेडियस लिया और यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी तक इतना काम किया है, कुछ नहीं किया। लाइन सेगमेंट ए बी गिवन थी, पहले ए पे सेंटर लेके ए बी रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ, फिर बी पे सेंटर रखा, बी ए को रेडियस रखा, एक और सर्कल ड्रॉ। अब ये दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट का नाम है, हमने रखा है सी, ठीक है, हमने रखा उस पॉइंट का नाम सी। नाउ यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको ए सी और बी सी को ज्वाइन करना है, ए सी और बी सी को ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। पहले क्या किया, सर्कल ए एज सेंटर, ए बी एज रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर बी एज सेंटर एंड बी ए एज रेडियस, अनदर सर्कल यू हैव टू ड्रॉ, ठीक है। आफ्टर दैट वो जहां पे इंटरसेक्ट किए उस पॉइंट का नाम रखा सी, ओके। एंड थर्ड स्टेप इज यू विल ज्वाइन ए सी एंड बी सी, ये हम लिखेंगे इन इंग्लिश, यू कैन राइट, okay, that with AS center and AB as radius draw a circle, similarly with BS center and BA as radius draw another circle which will intersect the given circle at the point C. Now join AC and BC. यहां तक हो गया। अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बुक में देख रहे हो 3 फिगर बनी हुई हैं, देख के डर गए कि ये क्वेश्चन तो समझ नहीं लगा, मत देखो, ठीक है, कुछ नहीं किया हुआ। उन्होंने क्या किया है कि अब जैसे आपने ये बना लिया ना, अब व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने पूरे को ड्रॉ करने की मेहनत नहीं की, ओके, इट्स जस्ट दिस कि पूरे को ड्रॉ करने की मेहनत नहीं की है उन्होंने, सिर्फ आपको ये जो इतना पार्ट है ना, बस आपको उन्होंने इतना पार्ट दिखा दिया है और आप डर गए। मत देखो, सिर्फ कुछ नहीं है, सर्कल ड्रॉ किया है, बट सर्कल आप ऐसे ड्रॉ कर दो, ये जरूरी तो नहीं है कि जो बुक में बने वैसे करना है, आप ऐसे ड्रॉ कर लो, नहीं होता है तो बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ 3 फिगर्स, एक ही फिगर बनाओ, इट्स ओके, राइट। सो नाउ ये फिगर आपको गिवन होगी बुक में, नहीं बनानी आती कोई बात नहीं, पिछले वाली फिगर बना लो, दैट्स कंप्लीटली फाइन, और लिख दो ए को सर्कल लेके और सेंटर लेके और वो सारी जो मैंने अभी बोली, राइट, वो लिखो। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब देखो, यूजिंग पोस्टुलेट 3 हम लिख रहे हैं कि यूजिंग पोस्टुलेट 3 लेट्स ड्रॉ अ सर्कल विद पॉइंट ए एज अ सेंटर एंड ए बी एज अ रेडियस, सिमिलरली ड्रॉ अनदर सर्कल विद बी ए सेंटर एंड रेडियस बी ए, ये हम कर चुके हैं अभी पिछले में। अब हमने उसका ऊपर वाला पार्ट लिया है क्वेश्चन का, फिगर का, और ये इतना से पार्ट लेके कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, बट आप पूरी फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। दोनों सी पे मीट करेंगे, ए सी और बी सी को ज्वाइन कर दिया, ये तो ऐसी वर्डिंग हो गई। अब मेन क्वेश्चन क्या है, कैसे करेंगे। अब देखो, अगर आपने सर्कल ड्रॉ, अब हमें ये प्रूव करना है कि ए बी बी सी और सी ए तीनों इक्वल है। आपको याद हो तो हमने ए को सेंटर लेके ए बी को रेडियस लिया था, फिर सर्कल ड्रॉ किया था, राइट। तो इस अगर मैंने ऐसे लिया था तो इसका तो ये मतलब हो गया कि ये जो है आपकी ए बी वो आपके ए सी के इक्वल है, क्योंकि आपने लिया था कि ए सेंटर है और ए बी रेडियस है। फिर जब आपने दोबारा ड्रॉ किया तब आपने बी को सेंटर लिया एंड देन यू सपोज कि बी ए रेडियस लिया है, तो अगर बी ए रेडियस लिया है तो ये रेडियस और ये भी तो रेडियस है, तो इसका मतलब ए बी बी सी के इक्वल आ गया। दैट मीन्स हमने लिया कि ए बी ए सी के इक्वल है क्योंकि ये दोनों सर्कल के रेडियाई हैं, सेम वे से ए बी बी सी के इक्वल है क्योंकि वो दूसरे सर्कल के रेडियाई है, ठीक है। और अब देखो इसमें, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, कॉमन क्या आ रहा है, ए बी, तो कॉमन को तो हम स्किप कर सकते हैं, बिकॉज यूक्लिड एक्सियम क्या बोलता है, things which are equal to the same thing are equal to one another। अब ए बी बी सी के, ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी बी सी के भी इक्वल है, तो कॉमन वाले पॉइंट को छोड़ दो, तो बचा क्या, ए सी और बी सी, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी सी, hence ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ए सी, अगर
ये फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या आया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, और वो सिर्फ किस ट्रायंगल में होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। दैट्स इट, बस यही तो एग्जाम्पल थी, कुछ भी नहीं था, वो तो बस बुक में लिखा हुआ इतना बड़ा तो देख के शायद डर लग गया, बट डरने की कोई बात नहीं थी, राइट? तो दिस इज एग्जाम्पल. सो वी हैव सक्सेसफुली finished the history of Euclid geometry, कैसे ज्योमेट्री बनी, कैसे उसकी डेफिनेशन आई, पोस्टुलेट्स आए, एक्सियम्स आए, then we have discussed the examples and the questions in detail. Okay, hope you have understood. तो अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, right? So happy learning, all the best for your exams, and do not forget to click on the subscribe button. Thank you, bye.